Hello students, welcome back. We are here to discuss the MCQs pertaining to economics. That's going to be your semester number 6. Now as we are aware, we have got some around 4 different modules to be analyzed. The first one, children, that is like the international trade theories that we have. Second one, which is related to the commercial policy. Module number 3, children, it's balance of payments and WTO. And module number 4, as you all know, it is foreign exchange markets and the exchange rate determination. So students, every lecture I will be coming up with discussion of MCQs related to any of the modules that we have. So again, as most of you are getting ready for your online exams during this pandemic of COVID-19, so whatever it is, we are going to study a bit and maybe score better marks in our exams, because as everyone knows, this is also very important year from your careers point of view. So अगर मेरे लेक्चर से आपको थोड़ा सा भी कुछ फायदा होता है और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. So as you can read the title of your module, children, it reads what is called as the balance of payments and WTO, or international economic organizations they call it as. Okay, so talking about this module, in which generally we study the structure of balance of payments padna padta hai isme. Then we also study what is called as the disequilibrium in the balance of payments, uske causes, or how to correct the disequilibrium in the balance of payments. And then there are some questions which are related to WTO introduction. Then we also have got principles and objectives of WTO, and a very important question in which we analyze what is known as TRIPS, TRIMS and GATS agreements. Okay, so without delay, children, let us continue with the discussion of the objective questions. So as you can see on your screen, children, the first question that we have here, it's related to what's called as the true or false, we can say. Okay, and in that we are going to analyze the first question. So state whether the following statements are true or false. Any exchange transactions are entered in the trade account. Now, first of all, for those people who have never opened their notes, we get a structure of balance of payments, children, jahan pe like double entry bookkeeping system, we have the receipt side and then we also have the payment side, right? अच्छा, तो इसमें स्टार्टिंग का जो अकाउंट आता है चिल्ड्रन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड अकाउंट बैलेंस. सेकेंड वाला जो अकाउंट रहता है चिल्ड्रन, विच इज एक्चुअली नोन एज अ करंट अकाउंट बैलेंस. लास्ट वाला आता है चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस. ये फर्स्ट वाले अकाउंट में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है. सेकेंड वाले में गुड्स के साथ साथ वी ऑल्सो गॉट सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स, यूनिलैटरल रिसीट्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट. लास्ट वाले में चलो लोन्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया. तो इन्होंने क्या बोला है कि एनी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एनी करके बोला, कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रेड अकाउंट में एंटर होता है. तो आई फील दैट दिस सेंटेंस इज फॉल्स. Why? Because they do not enter any transaction in the trade account, children. We only enter those transactions which involve import or export of goods. Okay, it's also called as merchandise या फिर visible trade करके बोलते हैं इसको. Clear? अच्छा. Second question, children, which reads, balance of payment records only payments made by a country to the rest of the world. क्या बोला है कि suppose it only records payments made by one country to the rest of the world. So children, I don't think it only records the payments, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का अगर आपने ध्यान से डेफिनेशन देखा रहेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करके बोला है. क्या बोला है? all the economic transactions, जबकि ये लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ पेमेंट्स जाते करके. So again, children, this statement is going to be a false statement. Number 3, current account shows all the receipts of visible items.
तो चलो क्या बोला था, फर्स्ट वाले में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स, सेकेंड वाले में क्या, सर्विसेज। सर्विसेज आर ऑल्सो नोन एज इनविजिबल आइटम्स, जबकि ये लोग क्या बोल रहे हैं, विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। चलो ये फर्स्ट वाला जो सेक्शन है ना, ये इसमें चिल्ड्रन फर्स्ट वाले में गुड्स आते हैं, सेकेंड वाले में सर्विसेज आते हैं, तो पहला वाला विजिबल, दूसरा वाला इनविजिबल बोला जाता है। सो अगेन चिल्ड्रन हियर वी गो फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 4, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ये तो जनरल नॉलेज की बात होगी बच्चों, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन India's foreign exchange reserves includes coins and currency notes by RBI। क्या बोला है कि इंडिया के फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व रहता है चिल्ड्रन, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने करेंसी नोट्स और आरबीआई, आई होप यू पीपल आर अवेयर कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स आते हैं उसमें एक तो गोल्ड इंक्लूडेड होता है चिल्ड्रन, एंड देन वी हैव गॉट व्हाट आर कॉल्ड एज एसडीआर, special drawing rights. All the members of IMF, they contribute certain capital to the pool of capital, जिसको special drawing rights करके बोला जाता है। तो आरबीआई के रिजर्व्स में ये सब चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करके रखते हैं। और जो सपोज वी ऑल्सो हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज अ pool of capital that we can say. Question number 6, children. Balance of payments is based on double entry bookkeeping system. तो BOP को मेंटेन करते वक्त चिल्ड्रन वी गो फॉर डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम। सो फिफ्थ वन वाज फॉल्स और सिक्स्थ वाला क्या है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आएगा। सेवेंथ चिल्ड्रन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन एनुअल अकाउंट ऑफ अ कंट्री। क्या बोला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ एनुअल अकाउंट ऑफ अ कंट्री करके बोला है। तो that is not a proper statement children, it's not an annual account, it's a annual statement of all the receipts and payments between one country and the rest of the world, इसको भी आप false बोल सकते हो। Number 8, a balance of payment statement is a summary of a nation's internal trade। कौन सा वर्ड गलत दिख रहा है आपको यहाँ पे, internal। Children, this is not internal, it should be international trade, or secondly we can also talk about what is called as external trade। so इसमें external trade को include किया जाता है, मतलब ठीक है। अच्छा, then children question number 9, नाइन्थ वाला स्टेटमेंट क्या है देख लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस करके लिखा है, तो सीधी सी बात है, जहां कहां पे भी आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करोगे तो एक ही ट्रांजैक्शन का हम लोग दो एंट्री मारते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता ही है, या फिर हम लोग उसको बैलेंस करके दिखा सकते हैं। अच्छा, सो डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से वो बैलेंस हो जाता है। नंबर 10, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स द सेम। गलत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो डायग्राम बताया था चिल्ड्रन, कौन सा, रिसीट्स और पेमेंट्स वाला, तो ये रिसीट साइड और ये पेमेंट साइड, इसमें चिल्ड्रन जो फर्स्ट वाला आता है ना, गुड्स को एक्सपोर्ट किया तो पैसा आया, गुड्स को इंपोर्ट किया तो पैसा गया, उसको बोलते हैं ट्रेड अकाउंट बैलेंस। और इसका जो ओवरऑल बैलेंस होता है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो दे आर नॉट द सेम, सो दिस हैज टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का स्टेटमेंट शोज व्हाट इज सेंट बाय foreign countries। Again children, that should be a false statement, ठीक है। It does not only show what the foreign country sent, it also shows what is being sent by the domestic country। तो हमने क्या क्या बेचा, उन्होंने क्या क्या रिसीव किया, उन्होंने क्या क्या बेचा, हमने क्या क्या रिसीव किया। तो again children, this has to be a false statement। Number 12, merchandise and invisible account means the same। merchandise बच्चों मतलब क्या, गुड्स, और गुड्स इनविजिबल होते हैं क्या विजिबल होता है, विजिबल होता है। तो मुझे लगता है मर्चेंडाइज और विजिबल सेम होना चाहिए, और सर्विसेज और इनविजिबल सेम होता है। सो अगेन चिल्ड्रन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो दिस वर सम ऑफ द आंसर्स दैट वी हैव चिल्ड्रन फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्रू और फॉल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन दैट वी हैव हियर इज रिलेटेड टू, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट वी कैन से। तो चलो कुछ स्टेटमेंट्स कंप्लीट करके नोट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड व्हाट आर दोज स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू। तो आई थिंक दे आर प्रोवाइडेड विद द आंसर चिल्ड्रन, यू कैन गेट इट क्लियर्ड विद एनी डाउट्स एंड ऑल।
अच्छा, नंबर 1, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन डैश अकाउंट। तो चलो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल होता है। तो सीधी सी बात है कि आप उसको कौन से अकाउंट में इंक्लूड करोगे? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू इंक्लूड इट इनटू द कैपिटल अकाउंट. Second one, in balance of payment account, all the goods exported and imported are recorded in the dash account. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है चिल्ड्रन, वी जनरली कॉल इट एज अ ट्रेड अकाउंट करके भी बोलते हैं. फिर इन स्पेसिफिक टर्म्स चिल्ड्रन वी कॉल इट एज अ मर्चेंडाइज अकाउंट करके आप बोल सकते हो उसको. ठीक है, सो मर्चेंडाइज, आई थिंक ट्रेड अकाउंट भी चलता है. लेकिन नंबर 3, गिफ्ट्स एंड चैरिटीज आर ऑल्सो नोन एज. बच्चे लोग, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो देशों के बीच में जब भी ट्रेड होता है तो हम लोग गुड्स भेजेंगे, वो पैसा देंगे, वो लोग गुड्स भेजेंगे, हम लोग पैसा देंगे, या फिर हम लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते तो रिटर्न में पैसा आता है. बट देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस चिल्ड्रन जहाँ पे कुछ भी नहीं जाता फिर भी पैसा आता है. तो दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज वन वे पेमेंट्स और वन वे ट्रांसफर्स. और उसके लिए हमारे पास वर्ड है चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. सो गिफ्ट्स, चैरिटीज, एक देश जब दूसरे देश को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करता है उसको हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में रिकॉर्ड करेंगे. अच्छा, देन करंट अकाउंट बैलेंस इंक्लूड्स. करंट अकाउंट में बच्चों लोग गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स करके आता है उसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, डैश is in surplus when autonomous receipts are more than autonomous payments. क्या बोले देखो, डैश is in surplus when autonomous receipts are more than autonomous payments करके लिखा है. So मतलब टोटल पेमेंट्स ज्यादा है बच्चों लोग, या फिर टोटल रिसीट्स ज्यादा है. तो रिसीट्स आर मोर करके बोला ना, तो इट विल बी नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट रहता है चिल्ड्रन वो सरप्लस में जाता है. कब सरप्लस में जाता है? जब रिसीट्स ज्यादा है और पेमेंट्स कम है, तो उसको आप सरप्लस बोलोगे. पेमेंट ज्यादा रहेंगे, रिसीट्स कम होते, तो आप व्हाट डू यू कॉल दैट चिल्ड्रन एज? इट्स नोन एज डेफिसिट करके बोलो. दोनों भी सेम रहेंगे तो आप क्या नाम दोगे उसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करके बोला था. क्वेश्चन नंबर 6, amongst the following foreign exchange reserves of India include. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या क्या आता है? तो आरबीआई का करेंसी नहीं, एसबीआई का कॉइन्स नहीं, म्यूचुअल फंड्स नहीं. तो वी हैव गॉट स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. बच्चों लोग, वी हैव गॉट समथिंग लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. अच्छा, तो आईएमएफ का कुछ कैपिटल होता है. अभी इनका कैपिटल क्या होता है कि हर एक देश आईएमएफ के कैपिटल में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, रेशो. तो आपने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, चलो उसके प्रोपोर्शन में आपको वहां से कुछ पैसा विड्रॉ करने का राइट्स मिलता है. उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. तो आप फॉरेन करेंसीज में उसको विड्रॉ कर सकते हो. सो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. द कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स डैश ट्रांजैक्शंस. अभी बताने की जरूरत नहीं है आपको. कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड होगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होगा. Number 8, the period dash witnessed severe balance of payments का problem. तो 1956-57 से लेकर 75-76, या फिर 1976 से लेकर 76-77 से लेकर 79-80, या फिर चिल्ड्रन वी हैव गॉट 1980-81 से लेकर 1990-91, 1991 से लेकर 2011. तो आई थिंक a most appropriate answer is related to 1980 से लेकर 1990 तक. ये वो टाइम था बच्चों लोग जब इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ वेरी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस. और फिर आई थिंक वी आल्सो आर अवेयर अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके बोलते हैं. तो 1980s 1990 में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी. तभी जाके पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे इंडिया के लिए, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज राव मनमोहन रिफॉर्म्स. And that was to liberalize the entire economy, and it was a total transformation of the Indian economy from a closed and a conservative economy towards a more open and a globalized economy, children. Question number 9. Balance of payment is a statement of record of all dash transactions. So children, we call it as all economic transactions. Am I right?
only those transaction children which involve money are included into the balance of payments. और इससे भी definition बाहर क्या रहेगा तो आपको पता रहेगा. Balance of payment is a systematic record of all the economic transactions between the residents of the reporting country and the rest of the world. Number 10 children, balance of payment is a record pertaining to a period of, obviously it is going to be children 1 year. तो जैसे हम लोग नॉर्मली मंथ का नहीं होता, चलो क्वार्टर का नहीं होता, फोर्टनाइट का भी नहीं होता, 15 days, इट्स अ ईयर. नंबर 11, डैश अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल रियल एंड शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस. क्या बोला देखो, हाँ, डैश अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल रियल एंड शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस. तो सीधी सी बात है चिल्ड्रन के लिए कि इसमें लॉन्ग टर्म होगा तो सीधी सी बात है कि वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो आप यहाँ पे करंट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो. Number 12, capital account records all financial and dash transactions. So I think like children, we will be going towards what is called as long-term transactions. So financial or long-term, मतलब long-term मतलब वो capital में ही form होगा children. Number 13, balance of payment is a statement of economic transactions between dash and the rest of the world. अच्छा, तो बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करके बोल सकते हैं. एक देश और पूरे दुनिया के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं चिल्ड्रन. ओके, देन वी गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 चिल्ड्रन, व्हिच रीड्स करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ द डैश एंड इनविजिबल अकाउंट. क्या बोला देखो, डैश एंड इनविजिबल अकाउंट. तो उसमें एक तो ट्रेड अकाउंट भी आता है चिल्ड्रन, and along with that we also got the invisible. Invisible का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट, और उसके ऊपर क्या आता है, ट्रेड अकाउंट. नंबर 15, कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ द डील्स विथ डैश ऑफ डेब्ट्स एंड क्लेम्स. कैपिटल अकाउंट डील्स और कंसिस्ट विथ डैश ऑफ डेब्ट्स एंड देन वी ऑल्सो गॉट क्लेम्स करके बोला है. सो व्हाट डज दैट हैव टू डू चिल्ड्रन? इट्स लाइक पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड क्लेम्स. मतलब आपने कोई लोन लिया है चलो फॉरेन कंट्री से, तो उनका जो पेमेंट होता है, या फिर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो उसका जो क्लेम होता है, ऑल दैट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. नंबर 16, यूजुअली द डैश अकाउंट कंप्राइजेस ऑफ द सर्विस अकाउंट एंड द गिफ्ट चैरिटी अकाउंट्स. तो चिल्ड्रन दैट इज जनरली कॉल्ड एज द इनविजिबल अकाउंट. क्या बोलते हैं उसको, इनविजिबल, क्योंकि ऐसे भी आप बोलते हो चलो सर्विसेज आर इनविजिबल. Number 17, the surplus of current account must be dashed to the deficit in capital account. Obviously, it has to be the surplus of current account. तो आपका जो current account का surplus है वो capital account के deficit से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो तभी जाके दोनों balance होते हैं ना. एक कम है दूसरा ज़्यादा, तो automatically it will get balanced. अच्छा, balance of payment refers to, balance of dash refers to the merchandise account of exports and imports only. Children, it is known as the trade account. Starting का जो trade account. Children, for those people who are finding any difficulty in understanding this, please go to your third module. वहाँ पे उन्होंने एक detailed format दिया हुआ है इसका balance of payments का, receipt side, payment side. For some people have explained it, the other people should be able to grasp it out. So trade account, that is the answer children that we have. 19, balance of payment has dash scope than balance of trade. So broader. Balance of trade में चलो सिर्फ गुड्स आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स के साथ सर्विसेज भी आते हैं, और फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस विल आल्सो बी इंक्लूडेड देयर. नंबर 20, balance of payment is a complete picture of a country's dash economic relations, and the answer is international economic relations, because here we are talking about the trade that is taking place between domestic country and the rest of the world. Number 21, dash account deals in payment of debts and claims. Debt मतलब चलो क्या, loan, और loan is a part of which account, capital account. Number 22, dash account consists of merchandise and trade account. So children, that is going to be what is known as a yes, recurring दिया है, saving दिया है, capital दिया है, current account दिया है. So I think हमारे लिए जो सबसे visible रहता है यहाँ पे, that should be what is called as current account. Merchandise, yes, merchandise account is a part of current account children. Number 23,
long term borrowings and lending, this is done for a period of more than dash years. Long term के जो dealings होते children, they are meant for a period of, I think according to our textbook children, it is more than 5 years. एक साल से कोई भी कम टाइम का लोन वगैरह होता है children, उसको आप शॉर्ट टर्म बोलते हो. अच्छा, एक साल से ज्यादा 5 साल से कम तो उसको मीडियम टर्म बोला जाता है. एंड एनीथिंग चिल्ड्रन, एनी बोरोइंग एंड लेंडिंग दैट टेक्स प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 years, वी कैन कॉल इट एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स. डैश इंक्लूड्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अच्छा, तो चिल्ड्रन दिस इन्वेस्टमेंट दिया है, ड्यूअल इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेशनल इन्वेस्टमेंट. Foreign investment, I hope you people are aware there are two types of investments that we have. We call what is called FDI, and we also have what is called as FII. FDI children relates to foreign direct investments, and FII is known as foreign institutional investment or portfolio investments. So it actually relates to any foreign entity children investing in any Indian firm, जैसे कि Hero Honda, Maruti Suzuki. These are all examples of what's known as foreign direct investment. But by any chance, the children, if the foreign institutions they invest into the Indian stock markets, like the share markets, the Bombay Stock Exchange or the National Stock Exchange, उसको आप foreign portfolio investment करके बोलते हो. So it's a part of foreign investment. Question number 25, children. Dash is not a cause of deficit in the balance of payments. मतलब इसमें से किसकी वजह से डेफिसिट नहीं आता है? इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से डेफिसिट आता है, एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से आता है, कैपिटल आउटफ्लो होने की वजह से भी डेफिसिट आ सकता है. तो कैपिटल इनफ्लो की वजह से नहीं आता, क्योंकि कैपिटल इनफ्लो मतलब क्या होगा चिल्ड्रन? द फॉरेन कैपिटल कमिंग इनटू इंडिया, सो दैट वुड एक्चुअली इंप्रूव इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पोजीशन चिल्ड्रन. सो दैट शुडंट बी व्हाट इज related to the disequilibrium or the deficit in the balance of payments we can have children. Okay, now going ahead children, we are going to discuss in detail now something related to disequilibrium in the balance of payments. Children, what is disequilibrium? You remember this was the format that we have. एक साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? रिकॉर्ड रिसीट्स, एक साइड में क्या? पेमेंट्स. अच्छा, तो डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई एक साइड बड़ा है फिर छोटा हो जाएगा. रिसीट्स बढ़ा है तो उसको आप क्या नाम देते हो? सरप्लस. पेमेंट्स ज्यादा रहेंगे तो आप क्या बोलोगे? उसको डेफिसिट. बाय इफ एनी चांस चिल्ड्रन बोथ द साइड्स आर इक्वल, यू कॉल इट एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम मतलब दोनों में से कोई भी एक साइड छोटा बड़ा रहता है. लेकिन जनरली डिसइक्विलिब्रियम यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस वेयर इन वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट्स आर मोर देन द रिसीट्स. तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे. तो आपको पता है चिल्ड्रन डिसइक्विलिब्रियम का मेन कॉज क्या होता है? इंपोर्ट्स का ज्यादा होना और एक्सपोर्ट्स का कम होना. तो कहीं पे भी आपको लगा कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है या फिर इंपोर्ट्स ज्यादा हो गए, समझ जाने का कि डिसइक्विलिब्रियम आएगा. द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज नॉट एडवाइजेबल एज अ शॉर्ट रन मेजर. अच्छा, सपोज लाइक फॉर एग्जांपल कि लाइक कभी कभी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो डेफिसिट होता है तो उस टाइम पे हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं. व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चिल्ड्रन? कि दोज गुड्स चिल्ड्रन विच वर अर्लियर इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विल नाउ बी प्रोड्यूस्ड इन आवर ओन कंट्री. अभी जो गवर्नमेंट टेक्निक्स लेके आता है ना चिल्ड्रन, नए नए कुछ स्कीम्स, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, व्हाट डू दे से चिल्ड्रन? कि those goods which were earlier produced in foreign countries will now be produced in our own country. या फिर बाहर से जो पहले जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं चिल्ड्रन, every time the Chinese products come in India, India's money will flow to China. हाँ, तो best thing is like we can find some substitutes of the Indian origin. So that is advisable children. तो इनका जो statement है that is a false statement. अच्छा, devaluation makes exports costly. क्या बोला देखो? हाँ, devaluation will make exports costly. अच्छा, devaluation of currency की वजह से होता क्या है चिल्ड्रन पता है? व्हाट इज डिवैल्यूएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट अगर 75 रुपीज डॉलर का प्राइस है चिल्ड्रन, फ्यूचर में जाके अगर वो 80 होता है या तो फिर आप उसको क्या करते हो? 70 पे लेके आते हो. तो चिल्ड्रन मेकिंग इट 80 रुपीज इज कॉल्ड एज डिवैल्यू. 75 रुपीज का 80 रुपीज करना डिवैल्यूएशन बोला जाता है. जब 75 रुपीज का डॉलर 70 मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट विल बी कॉल्ड रिवैल्यूएशन या फिर एप्रिसिएशन. अच्छा, तो 75 का 80 होगा तो फिर एक्सपोर्ट्स
कॉस्टली होगा? नहीं, एक्सपोर्ट से तो फायदा होने वाला है. इंपोर्ट्स कॉस्टली होगा चिल्ड्रन. क्या कॉस्टली हो जाएगा? इंपोर्ट्स, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट चिल्ड्रन. Depreciation of a currency makes the imports cheaper. That is again going to be a false statement children, क्योंकि दो वर्ड्स आते हैं चिल्ड्रन. एक होता है devaluation और एक होता है depreciation. Depreciation में चलो ऑटोमेटिकली होता है, devaluation जानबूझ के किया जाता है. दोनों में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे करेंसी का वैल्यू कम कर देते हैं. अभी पहले हमारा मतलब $1 का प्राइस था 75, अभी $1 का कीमत 80 रुपीज हो गया. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर devaluing our own currency. So I think this is also a false statement. It will make imports costly. The main aim of direct measures is to restrict imports. बराबर. डायरेक्ट मेजर जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया कि देखो आप इंपोर्ट्स नहीं करोगे, तो डायरेक्ट मेजर तो काहे के लिए होता है, क्योंकि आपको इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करना होता है. दैट इज व्हाई दे आर इम्प्लीमेंटेड चिल्ड्रन. Then, disequilibrium in balance of payment indicates deficits of a country. तो ध्यान रखने का, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ डेफिसिट भी नहीं होता है, वो सरप्लस भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी नोन एज सरप्लस. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट चिल्ड्रन. नंबर 6, there is no disequilibrium in the balance of payment as a whole. 6th वाला sentence which says that there is no disequilibrium in the balance of payment as a whole. तो वी आर अवेयर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि लाइक क्योंकि हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, उसकी वजह से हर एक एंट्री का चलो दो ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन का दो एंट्री मारा जाता है, अ डेबिट एंट्री एंड अ क्रेडिट एंट्री. इसका मतलब क्या होता है कि वो तो बैलेंस ही होना है. तो डिसइक्विलिब्रियम इज एक्चुअली not existing. So this is a true statement children we can have. Okay. Then number 7, short term and long term disequilibrium means the same for the developing country. शॉर्ट टर्म और अच्छा ऐसे भी आपको पता है शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम और लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम सेम नहीं होता है. चलो सडनली कुछ कोविड जैसे सिचुएशन हो गया और उसकी वजह से थोड़ा डिसइक्विलिब्रियम आ गया, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम. लेकिन कभी ऐसे भी तो होता है कि मतलब जो कंट्री हमसे कुछ गुड्स खरीदते थे, अभी उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप किया, तो अभी वो लोग फ्यूचर में हमसे कभी भी वो गुड्स खरीदने वाले नहीं है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम आएगा. सो दे आर नॉट द सेम. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट चिल्ड्रन. नंबर 8, fundamental disequilibrium is a short term phenomenon. That's a false. Fundamental disequilibrium जो होता है चिल्ड्रन, तो I think it will be a long term disequilibrium. तो I think over a long period of time जो दिखता है उसी को हम लोग fundamental disequilibrium करके बोलते हैं. So this is a false statement. Number 9, exchange depreciation is a non-monetary measure to correct disequilibrium. क्या बोले देखो, हाँ, एक्सचेंज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन मॉनेटरी मेजर. अच्छा, तो सपोज व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू चिल्ड्रन हियर कि इट इज अ मॉनेटरी मेजर जहां पे हम लोग जानबूझ के अपने करेंसी का वैल्यू कम कर देते हैं. सो अगेन 9th वाले को भी आप क्या बोल सकते हो, फॉल्स बोल सकते हो चिल्ड्रन. नंबर 10, टैरिफ एंड कोटा इज अ नॉन मॉनेटरी मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम. दैट्स ट्रू चिल्ड्रन. टैरिफ मतलब फॉरेन से आने वाले गुड्स के ऊपर आप टैरिफ लगाओगे, कस्टम ड्यूटी लगाओगे, प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, तो फिर आपके देश में कॉस्टली होंगे, पीपल विल नॉट बाय, सो पीपल विल स्टॉप इंपोर्टिंग देम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. एंड व्हाट्स अ कोटा? कोटा मींस चिल्ड्रन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट्स, जहां पे आपका देश बोलेगा कि इससे ज्यादा गुड्स आप इंपोर्ट नहीं करोगे. नंबर 11, टैरिफ एंड कोटाज आर इनडायरेक्ट मेजर्स टू करेक्ट disequilibrium in the balance of payment. So tariff and quotas are not indirect measures children, they will be a part of direct measures. So again that becomes a false statement. Exchange control is a non-monetary measure towards balance of payments. That's a false statement. Exchange control children will be a monetary measure. And population explosion affects balance of payment position adversely. Population ज्यादा होगा तो दो चीजें आप नोटिस कर सकते हो वहां पे. एक, क्योंकि आपका पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग जितना भी प्रोड्यूस कर लेते हैं हमारे लोग खुद ही सब खत्म कर देते हैं यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू बी लेस. और आपका पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा चिल्ड्रन कि आप जितना प्रोड्यूस करते हो उतना आपके देश के लिए काफी नहीं होता है, तो आपको फॉरेन कंट्री से वो सब चीजें क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ती है. तो आई थिंक एडवर्स इफेक्ट. So that's a very true statement children that we have.
Okay. Now, coming towards children, one more thing that is related to balance of payments. Okay, it's going to be the objectives related to completing the statements, children. So choose the correct option and rewrite the sentence. Number one, tariffs imposed to reduce imports constitute the dash measures. टैरिफ को जब हम लोग इम्पोज करते हैं चिल्ड्रन, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेजर. आपने टैरिफ लगाया, कस्टम ड्यूटी लगाया, इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं. नंबर टू, अंडर डैश पॉलिसी द एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉरेन मार्केट बिकम रिलेटिवली चीपर. अच्छा, क्या होगा चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या बोला देखो, हाँ, कि अंडर डैश पॉलिसी the export items of a country in the foreign market become relatively cheaper. cheaper मतलब चलो डिफ्लेशन, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन होता है. नंबर थ्री, नॉन मॉनेटरी मेजर्स इंक्लूड डैश. तो टैरिफ्स, कोटास, एक्सपोर्ट प्रमोशन, देन वी हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल ऑफ दीज करके दिया है. सो आई थिंक वी शुड गो फॉर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो, इंपोर्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन ढूंढो, टैरिफ लगाने का या फिर कोटाज लगा देते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर नॉट एज द नॉन मॉनेटरी मेजर्स. Next one, a worse position of deficit in India's balance of payment position in recent times is due to dash. Rise in export related imports. मतलब हम लोग कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं ताकि उसको हम लोग बाद में प्रोसेस करके क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे. तो ये भी बराबर. स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल महंगा होता है, सब चीजें महंगी हो जाती है. ग्लोबलाइजेशन, ओके, मतलब फॉरेन के गुड्स इंडिया में आसानी से आ रहे हैं. आई थिंक वी शुड गो फॉर ऑल ऑफ द अबव. नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. फॉल इन एक्सपोर्ट कॉज में आता है, राइज इन इंपोर्ट्स भी कॉज में आता है, कैपिटल इनफ्लोज, ग्लोबलाइजेशन भी कॉज में आता है. तो कैपिटल इनफ्लोज नहीं, इसकी वजह से चलो डेफिसिट नहीं, सरप्लस आ सकता है. सो दैट्स रिलेटेड टू डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेक्स्ट. In the dash sense, balance of payment must always balance. मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बैलेंस होना ही पड़ता है. दैट इज लाइक अकाउंटिंग सेंस चिल्ड्रन, क्योंकि मैंने आपको बोला डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग. सो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर आर टू एंट्रीज व्हिच आर रिकॉर्डेड. नंबर सेवन, अ कंट्री हैज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पोजीशन इफ इट्स टोटल रिसीट्स डैश टोटल पेमेंट्स. दैट इज एक्सीड्स आएगा. रिसीट्स ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन फेवरेबल रहेगा चिल्ड्रन. ओके. Number 8. Now here we talk about children. A country's balance of payment position is in disequilibrium with dash affected by greater receipts or payments. A country's balance of payment position, okay, is in disequilibrium with dash by greater receipts of payments. ज्यादा receipts है चलो, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आप क्या नोट कर सकते हो, विल बी टॉकिंग अबाउट सरप्लस. द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम becomes more serious for a country facing a dash. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम का पोजीशन ज्यादा खतरनाक तब होगा जब हम लोग क्या फेस करते हैं, एक्सेस नहीं, सरप्लस नहीं, प्रोसीड्स नहीं, डेफिसिट. वी आर फेसिंग अ डेफिसिट, तो डिसइक्विलिब्रियम becomes dangerous. Cyclical disequilibrium may be caused by the dash occurring in the economy. क्या बोला देखो, cyclical disequilibrium may be caused by the dash occurring in the economy. Cyclical equilibrium is still related to what is called as, we studied those trade cycles ना, ups and downs. तो उसकी वजह से जो disequilibrium आता है उसको हम लोग cyclical disequilibrium करके refer करते हैं यहाँ पे. So that should be option A. Number 11, children. Dash disequilibrium may be caused by the structural changes in the certain sectors of the economy. नाम में ही लिखा है children, structural disequilibrium. जैसे कि first we were an agricultural economy, nowadays we have become a more of an industrial and service oriented economy. So children, that should be having structural disequilibrium. Number 12, in factual sense, the true disequilibrium in the balance of payment is a dash phenomenon. अगर आप फैक्ट की बात करोगे तो इट्स व्हाट इज कॉल्ड एज
ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम आता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना. आप उसको फटाक से ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि चिल्ड्रन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हैं तो आप उनको आई थिंक 1 या फिर 2 दिनों में ठीक नहीं कर पाओगे. ओके. अच्छा, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट चिल्ड्रन समथिंग रिलेटेड टू the changes in the capital, information, and the territories of equilibrium. Technological innovations lead to dash disequilibrium. अच्छा, तो आई थिंक यहाँ पे भी अगर आप बात करते हो, yes, so I think it should be a part of what is known as technological. मतलब एक क्या फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. The changes in capital information, territorial expansion, technological innovations lead to dash disequilibrium. So children, that is going to be a long-term disequilibrium, I suppose. Yes, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है तो हमेशा के लिए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट चलो अफेक्टेड हो जाएगा. IMF, just a minute. IMF uses the term dash disequilibrium to explain the true long-term disequilibrium. Secular, seasonal, provisional या फिर fundamental करके refer किया है यहाँ पे. So children, we are talking about the fundamental disequilibrium, long-term disequilibrium it is called as. Dash means lowering the external value of a home currency, items of foreign currencies. So children, that should be something related to devaluation. So 15 का आंसर है चिल्ड्रन डिवैल्यूएशन. हम लोग जानबूझ के हमारे करेंसी का वैल्यू कम करते हैं. सो डॉलर्स या फिर रुपीस के करेंसीज की बात करोगे आप इधर. डैश इज अ पॉलिसी विच एम्स एट रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक पीपल. क्या बोले देखो, हाँ. डैश इज अ पॉलिसी विच एम्स एट रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट कैपेसिटी of domestic people. Again, the answer has to be children what is called as deflation. So import capacity को जानबूझ के कम किया जाता है यहाँ पे. We are going towards deflation. अच्छा, then we have on number 17 as a surest measure, dash is adopted by the government of a country to correct disequilibrium in the balance of payment. Exchange rate, exchange control, exchange depreciation. तो 17th का आंसर आता है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज कंट्रोल. जानबूझ के आपको करेंसीज के वैल्यूज को ऑल्टर करने की जरूरत पड़ती है. सो इट्स अ शो शॉर्ट मेजर दैट वी हैव चिल्ड्रन. नंबर 18, डैश इज अ फिस्कल डिवाइस यूज्ड फॉर करेक्टिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सो टैरिफ्स, कोटाज, डेप्रिसिएशन या फिर पेरिश करके बोला है. So I think tariffs are imposed by the government. Any measure which is introduced by the government, children, is called as a fiscal measure, and those measures which are introduced by the RBI is called as a monetary measure. Number 19, we have the government may adopt dash programs by tax concession to the exporters. So I think we have got export import substitution. No, that is export promotion, children. So we'll be going for 19th का आंसर चिल्ड्रन हैज टू बी डी. एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने का उनको आप कंसेशन दे सकते हो. उनको बोलने का कि एक्सपोर्ट करो, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, या फिर आप उनके लिए बहुत सारे कुछ टैक्स कंसेशन प्रोग्राम्स लेके आ सकते हैं. नंबर 20, गवर्नमेंट में फिक्स द मैक्सिमम डैश ऑफ अ कमोडिटी टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री. maximum what is called as children import quota. So we will be actually talking about what is related to point import quotas. मतलब आपने क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया. नंबर 21, डैश इज एन ऑल्टरनेटिव टू एक्सचेंज डेप्रिसिएशन. आप एक्सचेंज डेप्रिसिएशन के लिए आप और एक ऑप्शन भी यूज कर सकते हो चिल्ड्रन, एंड दैट इज रिलेटेड टू डिवैल्यूएशन. मतलब एक्सचेंज डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन सेम होता है, दोनों में हमारे करेंसी का वैल्यू कम होता है. डेप्रिसिएशन मार्केट में ऑटोमेटिकली होता है, डिवैल्यूएशन ज्यादातर गवर्नमेंट जानबूझ के करती है, जहाँ पे अपने करेंसी के वैल्यू को फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम कर देते हैं हम लोग. अच्छा, 22, फिक्सिंग ऑफ इंपोर्ट कोटास इज बेटर फिस्कल डिवाइस टू करेक्ट एंड डैश, दैट इज adverse balance of payment, children, we can say. So we'll be talking about adverse मतलब चलो deficit होता है. And then 23, where we are referring to
reducing public expenditure to correct balance of payment disequilibrium is dash measure. पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो चलो मार्केट में पैसा खर्चा कौन करता है? गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट मतलब कौन सा वर्ड आ जाएगा यहाँ पे? फिस्कल मेजर्स आर इंक्लूडेड देयर. Okay, so here children we have discussed certain points related to, first of all children we came across the balance of payment का structure, and the second answer was related with what is called as the balance of payments का disequilibrium. So these were some of the module children. देखो आप अगर टोटली ब्लैंक हो तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी ठीक से समझ में नहीं आएंगे. अगर आपने थोड़ा सा भी अगर मॉड्यूल पढ़ा हुआ रहेगा, हाँ, तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा वहां से रीड करके बाद में आप मेरा ऑब्जेक्टिव्स का लेक्चर देखो तो आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंड होगा चिल्ड्रन, एंड देन इट विल बी हेल्पफुल. नहीं तो फिर अगर आपने कभी बुक देखा ही नहीं है तो फिर आपके लिए ये भी आपके सिर के ऊपर से जाएगा चिल्ड्रन. सो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी रिवाइज करो, एंड देन यू कैन रिफर टू दिस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. Bye everyone. See you in the next lecture with the discussion of MCQs with another module. That should be most probably the first module, children, international economic theories or international trade theories. Till then, bye everyone. Take care.